Hello students, today we are going to learn that is substance in the surrounding and their properties. In the previous chapter we have done when the heat is applied to a substance, its physical change or its physical shape will be what? Change. क्या हो जाएगा? Change. और जब किसी भी चीज को हीट अप्लाई होगा तो उसका फिजिकल शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. तो आज हम लोग करेंगे द टेम्परेचर एंड द थर्मोमीटर. The temperature and the thermometer. ये क्या कहता है? The temperature and thermometer. Let us see. When a substance get heat, it becomes warm and hot. जब पहले कोई भी substance heat मिलेगा, उसको कोई भी substance को अगर heat मिलेगा तो सबसे पहले वो क्या होगा? Warm. Then क्या होगा? Hot. Okay. The first process will be warm. Then will hot. Okay. पहले क्या होगा? गर्म होगा, थोड़ा हल्का गर्म होगा, फिर वो ज्यादा गर्म होगा. Okay. Then we put our hand or a finger in the water to judge how hot it is, but that is not an accurate measure. Besides, if the substance is very hot, we could get scalded. Before bathing, we are taking the warm water or hot water, taking bath. Some was bathing with the cold water, some are bathing with the hot water. But who bathing with the hot water, before that they are checking the temperature of the water is accurate or not, or proper or not for their body temperature. So that is not the accurate measure, है ना. जो हाथ से हम मेजर करते वो accurate नहीं है. For that, that is not an accurate measure. For accurate measure of the water or for its temperature, we are using the thermometer. Thermometer is using for the proper temperature in the surrounding. Okay, for proper temperature, what is the surrounding? जैसे कि हमारे आजू बाजू का टेम्परेचर कितना है. कुछ लोगों को फीवर होता है ना. someone gets fever, then they are checking with the thermometer से चेक करता है how much degree the fever has been going, है ना. तो थर्मोमीटर किससे मेजर होता है? डिग्री एंड सेल्सियस. सपोज 37 डिग्री सेल्सियस, 89 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मेजर होता है टेम्परेचर. ड्यू टू किसकी वजह से? थर्मोमीटर की वजह से. ओके. Now next is the unit of measuring temperature. There are several types of thermometer available nowadays. Digital thermometer are frequently used. बहुत तरीके के थर्मोमीटर्स आते हैं. जैसे कि अभी रिसेंटली थर्मोमीटर्स कौन सा है? डिजिटल वाला है. मतलब एट अ सर्टेन टाइम के बाद, 1 मिनट के बाद वो क्या अलार्म देना स्टार्ट कर जाए कि इसका टाइम क्या हो चुका है, अब हो चुका है. तो इसको थर्मोमीटर को हम निकाल लेंगे. तो उसको क्या बोला जाता है? डिजिटल थर्मोमीटर. क्या बोला जाता है? डिजिटल थर्मोमीटर. ओके. को थर्मोमीटर का पिक्चर भी दिया है और डिजिटल थर्मोमीटर का भी पिक्चर दिया. ओके. नाउ टेक अ थर्मोमीटर फ्रॉम द लेबोरेटरी. अब आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने बोला है. देखते क्या है. टेक अ थर्मोमीटर फ्रॉम द लेबोरेटरी. द बल्ब इट्स लोअर एंड इट्स फिल्ड विद द मर्क्यूरी. किससे भरने बोला है? मर्क्यूरी. किससे क्या भरने बोला है? द बल्ब इट्स लोअर एंड इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी. ओके. आइस लेने बोला है बीकर में. फिर उसके अंदर क्या डालने बोला है आपको? थर्मोमीटर. ओके. क्या डालने बोला है? थर्मोमीटर. इसके अंदर क्या है आपके? आइस क्यूब्स. क्या है? आइस क्यूब्स. इसमें आपका क्या रहेगा? थर्मोमीटर. ओके. क्या रहेगा आपका? थर्मोमीटर. ओके. दैट इज अ थर्मोमीटर. ओके. नाउ नेक्स्ट, the mercury rises to a certain level in the capillary tube above the bulb. You can see a scan next to mercury column. Reading the figure near the level of the mercury tells the temperature of air around the bulb of the thermometer. Hold the thermometer in a water so that the bulb is completely immersed in the water and read the temperature of the water. Repeat the activity. Temperature of water. Repeat the activity taking some hot water in one vessel and cold water or ice in the another temperature. जैसे आइस लिया है तो आइस का टेम्परेचर क्या है? धीरे धीरे मेल्ट होगा, उसका मर्क्यूरी भी ऊपर ऊपर जाएगा थर्मोमीटर का. तो उसका एक्यूरेट टेम्परेचर क्या है? एक्यूरेट टेम्परेचर क्या है वो हमें पता चलेगा. तो वैसे ही हमको हॉट वाटर के साथ करना है, कोल्ड वाटर के साथ करना है और आइस वाटर के साथ करना है. ओके.
इन तीनों वाटर के साथ हमको मर्क्यूरी थर्मोमीटर चेक करना है। ओके, इन तीनों को हमको थर्मोमीटर के साथ क्या करना है, चेक करना है। ये आपका क्या है, एक्टिविटी। क्या है, एक्टिविटी। नेक्स्ट, कुछ आपको सम एग्जांपल्स और टेम्परेचर दिए। लेट अस सी वो क्या है। कुछ एग्जांपल्स और थर्मोमीटर दिए, जैसे कि बॉइलिंग वाटर। फर्स्ट इज योर बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर किसमें होता है, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉईल कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, वाटर कब बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रीजिंग वाटर कब होता है, 0 डिग्री। आइस कब बनता है, फ्रीजिंग वाटर इज नथिंग बट योर आइस। फ्रीजिंग वाटर इज नथिंग बट योर आइस। कब होता है वो, 0 डिग्री सेल्सियस पे। कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी एयर का क्या होता है, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या होता है, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। एयर क्या होता है, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। देन आपका है एयर इन समर, तो क्या होता है, लेस देन 35। विंटर नाइट में क्या होता है, लेस देन 50 डिग्री, 15 डिग्री। फिर इनसाइड ऑफ फ्रिज क्या हो जाएगा, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड का लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। फिर इनसाइड द फ्रिज क्या हो जाएगा, लेस देन -, डिग्री सेल्सियस। इनसाइड द फ्रिज क्या आ जाएगा आपका टेम्परेचर फ्रीज का, फ्रीजर के अंदर, लेस देन -18 डिग्री सेल्सियस। देन बॉडी टेम्परेचर आपका कैसा रहता है, बॉडी का टेम्परेचर आपका कैसा रहता है, बॉडी टेम्परेचर अप्रॉक्स कितना रहता है आपका, 37 डिग्री सेल्सियस। कैसा रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है, अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस। कैसा रहता है, योर whenever someone asks what is the body temperature, you should have to be say that your body temperature is approx how much, 37 degree Celsius. Okay, how much is the body temperature, approx 37 degree Celsius. Okay, now boiling. What is the meaning of boiling? Boiling क्या होता है, water is continuously evaporating. अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, boiling. Let us see boiling में क्या है. वाटर इज कंटिन्यूटी इवोपोरेटिंग. इवोपोरेटिंग मीन्स जब हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो इवोपोरेट होता है वो किधर, एयर के फॉर्म में वो इवोपोरेट होता है ऊपर. ओके, वी नो दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप स्लोली ऑन इट्स ओन. दिस इवोपोरेशन अकर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर. अब आपको पता है सरफेस में किधर भी पानी गिरा, सरफेस में किधर भी पानी गिरा तो उसको आके कोई सुखाता है क्या, नहीं. ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, ड्राई हो जाता है. क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाता है. ओके, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, इवोपोरेट होता है. कैसा होता है, ये इवोपोरेट होता है. इसको कोई आके ड्राई नहीं करता है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है. ओके, नाउ दिस इवेपोरेशन अकर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर. What happen when water boils? क्या होता है जब वाटर बॉईल होता है, तो जब वाटर बॉईल होगा तब क्या होगा, What happen when water boil? जब वाटर बॉईल होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर इधर वाटर है, अगर ये बॉईल होगा तो ये क्या होगा, इवोपोरेट होगा. क्या होगा, इवोपोरेट. क्या होगा, इवोपोरेट, है ना. वाटर वेपर के फॉर्म में जाएगा ऊपर, तो क्या, इसको क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन. क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन. ओके, एज द वाटर गेट्स हीटेड टेम्परेचर इंक्रीज एंड इट इवोपोरेट एट अ फास्टर एंड फास्टर रेट. जब भी पानी हीट होगा तो इवोपोरेट होगा, फटाफट इवोपोरेट होगा, फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर. ओके, जितना हो सके उतना फास्ट हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर when water kept on a stove attains a particular temperature level or a heat, then evaporate take place in all the part of the body of water. Then we see water bubbles rising at a faster and faster rates to surface and steam mixing in the air. This is called the boiling of water. Boiling of water क्या होता है, सबसे पहले तो वाटर को हम स्टोव में जो गैस में रखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, वो बॉईल होना स्टार्ट होता है. धीरे 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 धीरे
पहले इधर थोड़ा गर्म, फिर इधर गर्म, इधर गर्म, इधर गर्म, फिर ऊपर गर्म, फिर धीरे धीरे उसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो पूरा जो उसका एयर से पूरे सराउंडिंग में फैलता है। फिर धीरे 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 वो क्या होता है, इवोपोरेट होता है। क्या होता है, इवोपोरेट। दैट इज नथिंग बट द बॉइलिंग ऑफ वाटर। उसको बोला जाता है इब्यूलिशन। क्या बोला जाता है, इब्यूलिशन। बॉइलिंग ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है, इब्यूलिशन। ओके। एट अ सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सी लेवल पे पता ही होगा वाटर कब बॉइल होता है। सी लेवल पे कब होता है वाटर बॉइल, एट 100 डिग्री सेल्सियस। कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे सी वाटर कब बॉइल होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। When the water vapors cool, it is converted into water again. This process is called the condensation. अब आपको मैंने बताया कि evaporation क्या होता है, मैंने बोला ना evaporation क्या होता है। सिमिलरली इसी तरह क्या होता है आपका, पहले तो evaporation मैंने बताया क्या होता है, इसी तरह आपका होता है कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन। क्या होता है आपका, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल है, ये आपका बीकर है। क्या है, ये बीकर, और आपको इधर हीट अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर आपने एक लेड रखा है, ढक्कन रखा है ना। इसके ऊपर से जा रहा है, ये हीट हो रहा है, थोड़ा सा गैप है तो बाहर भी जा रहा है तो इवोपोरेट हो रहा है। और इसी के ऊपर जो आपने लेड रखा है, जो ढक्कन रखा है, उसके ऊपर देखो पानी के स्मॉल स्मॉल डॉट हो जाते हैं। वापस से ये ऊपर जाके क्या और नीचे पानी बन रहा है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ओके, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ऑल्सो टेक प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसेशन के लिए भी कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्योंकि वाटर बॉइल ही 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो इसको भी क्या चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके। नाउ इट मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड द सेम। बॉइलिंग और कंडेंसेशन का डिग्री क्या है, दोनों का सेम है। क्या है, सेम। नेक्स्ट आपको कुछ एग्जांपल बोला है, देखेंगे इसको। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस अ थर्मोमीटर इन इट, हीट द बीकर इन अ स्पिरिट लैम्प, नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, रिपीट द एक्टिविटी एडिंग सॉल्ट और अ शुगर टू द वाटर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट अगेन, व्हाट डू इन्फर फ्रॉम इट। आपको क्या बोला है, एक बीकर लेने बोला है। आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि एक बीकर, एक आप कोई भी बीकर ले सकते हो, कोई भी बर्तन ले सकते हो, उसमें पहले हीट करोगे, तो पहले जो आप सिर्फ वाटर हीट करोगे उसका आपको टेम्परेचर लेना है कितना है, फिर उसके बाद उसमें शुगर ऐड करना है, फिर टेम्परेचर नोट करना है, उसके बाद दूसरे में क्या डालना है, सॉल्ट, फिर टेम्परेचर नोट डाउन करना है। फिर आपको देखना है कि टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस आते हैं और क्या सेम टेम्परेचर से बॉईल होता है कि इसमें भी क्या लगता है, टाइम लगता है। तो आपको ये नोटिस करना एक्टिविटी आप घर पे भी अपने ट्राई कर सकते हो। ओके। ना आपको एक छोटा सा उसमें एक रिएक्शन दिया है, एक छोटा सा टेबल दिया है। व्हाइल गेटिंग हीट क्या हो जाता है, व्हाइल गेटिंग हीट क्या हो जाता है, व्हाइल गेटिंग हीट क्या हो जाता है, जो सॉलिड है, सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में। जब मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, मेल्टिंग, ये क्या आपका स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग। और जब व्हेन लूजिंग हीट, जब वो हीट को क्या करता है, लूज करता है, क्या करता है, लूज। तो लूज में क्या होता है, व्हेन लूजिंग हीट, व्हेन इट्स गेटिंग हीट, जब हीट होगा, जैसे हमने आइस क्यूब डाला कंटेनर में, वो हीट हुआ, हीट से पिघला, पिघला से क्या हो गया, गैस बन गया। अब जब वो लूज करेगा अपनी हीट, जैसे हमने गैस ऑफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इस तरफ जा रहा है, ये रिवर्स में चला जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। कैसे होगा देखेंगे, जैसे गैस वेपर किस में बन जाएगा, लिक्विड में, जो ऊपर ढक्कन लगा रहेगा लिक्विड में बन जाएगा, फिर किस में बन जाएगा, सॉलिड में। ओके। तो ये क्या था आपका, लूजिंग हीट। क्या था, लूजिंग हीट। ओके। तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट है फ्रीजिंग। क्या है, फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्रीजिंग में है क्या। तो आज के लिए इतना ही।
तो घर पे इसको रीड करते रहना है और एक्टिविटी को ट्राई करते रहना है। फ्रीजिंग भी ऐसा ही है, कुछ नथिंग नहीं है उसके अंदर भी, तो उसको भी घर पे ट्राई करेंगे कि फ्रीजिंग कैसे रीड करेंगे इसको। फ्रीजिंग इज नथिंग बट आइस, आइस कैसे जमता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके, तो इसको भी रीड करेंगे, इसमें भी बहुत सारे एक्टिविटीज है। नेक्स्ट आपका है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को भी रीड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।